Sir, my family background, my father is in police, so they motivate me to join the defense forces as their dream was to join the defense forces, but due to some reasons they could not do so. So they motivated me and uplifted me to join the defense forces. Sir, 6 out of 10 were recommended from my group. Allahabad were used to call the rejection center. Sir, my interview was around 20 to 25 minutes. In the OIA test, it was normally just a normally test just to test your IQ. Sir, in PPDT test, we know that they show us a picture and we used to write a story on that. Sir, in the psych test, first is a TET portion. So मैंने सर इतनी प्रैक्टिस कर ली थी सर टेट की. सर अराउंड 6 to 8 स्टोरीज वर मतलब देखी हुई आ गई थी सर मेरी. सो आई क्रिएटेड अ गुड स्टोरी. जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी. माय नेम इज़ सचिन और आज सिलेक्शन की सीरीज़ में मेरे साथ हैं शुभनंदन और इन्होंने एसएसबी क्रैक किया है. रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू क्रैक किया है इन इज़ फर्स्ट अटैम्प्ट. 12th के साथ साथ एनडीए क्वालिफाई करना, एक ऑफिसर गजटेड ऑफिसर की जॉब लेना, इट्स अ बिग टास्क. Congratulations, Subnandan. Thank you, sir. That you have beautifully done your job, right? तो आज का जो एक्सपीरियंस रहेगा सुबनंदन का, वो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से आप एनडीए क्वालिफाई करेंगे, इससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलने वाला है. तो सबसे पहले हम जानेंगे शुभनंदन से कि व्हाट इज़ फैमिली बैकग्राउंड एंड स्टूडेंट्स को बताएं थोड़ा अपने बारे में. सर, माय नेम इज़ शुभनंदन तिवारी. सर, माय फादर इज़ इन पुलिस फोर्स एंड माय मदर इज़ अ होम मेकर एंड आई हैव अ यंगर सिबलिंग. सर, माय फैमिली background, my father is in police, so they motivate me to join the defense forces as their dream was to join the defense forces, but due to some reasons they could not do so. So they motivated me and uplifted me to join the defense forces. Okay, that's great. And from where I think you got the inspiration from your parents, right? Yes, sir. Okay. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनडीए रिटन एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन होती है, जो वो स्टूडेंट करते हैं, तो उसमें मैथ्स और जीएटी का 2 पोर्शन होते हैं. मैथ्स Yes, सबको पता है कि मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट जीएटी, तो जीएटी में कौन सा पोर्शन रहता है जो सबसे ज़्यादा जिसको आप इम्पोर्टेंट मानते हैं? Sir, in my opinion, sir, English is the most important section in the GAT because it consists of 50 questions, around 200 marks. And if you want to really score good in GAT, you should focus more on English part. After it, we can consider geography as our main goal because in the SST section, geography is the main questions around geography you can prepare. In our journey, sir, like Vikas Bhatt sir used to teach us geography, so I remember his thought that he used to make us very short notes and tell कि बस इतना कर लो, इतने में ही हो जाएगा. And around questions were came from the sir's note. And sir, after that we can consider science section like physics, chemistry and biology. These also contain good marks. Sir, if we focus on these portions, we can create a good score in GAT. या एग्जैक्टली. इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है. उसके अलावा साइंस, सोशल साइंस एंड करंट अफेयर्स का भी पोर्शन रहता है. तो करंट अफेयर्स के 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो भी आपको ध्यान देने हैं. तो इस तरीके से आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं. एंड मैथ्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर जिसको आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये तो हो गई रिटन की बात. अब बातें हैं एसएसबी की बात. सुबनंदन, जस्ट टेल मी योर एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट एसएसबी. Yes, sir. which you have already cracked. Yes, sir. Now going to join National Defense Academy, Khadagwasla, Pune. So just share your experience of SSB from Sir, day 1 to day 5. My SSB was scheduled on 14 Jan, so I reached on 13 Jan in Allahabad, and on 14 Jan I have to report at 5 PM at the Karyappa gate.
Okay. Sir, after my reporting, the documents were verified initially, and we were set on the waiting room till our OIR test began. In the OIR test, it was normally just a normally test, just to test your IQ. And sir, after that, around 15 to 20 minutes, we begin with our PPDT test, which is the most important test in the screening procedure. Sir, in PPDT test, we know that they show us a picture, and we used to write a story on that. But sir, in screening, it is the most that you have to stand different from your group. Means if your group is going towards that direction which is wrong, so you have to take a group in the good direction, so that the assessors must notice you that you are taking an initiative, and being a leader, you are taking them in the right direction. So this helped me very much. And sir, in my group was not so active, because members, candidates in my group were not giving verified points and valid points. So sir, I practiced a lot in I had already practiced a lot, so that it benefited me in the screening procedure, and it gained me a benefit from them. Sir, this helped me in my Okay. screening. So, as I asked Anmol, I am asking the same question. How many students were there in your batch during PPDT? Sir, in my batch, around 110 students reported, and in that 48 were screened in. The highest in the boards of Allahabad. 40? 48. 48. Yeah, exactly. 48 तो काफ़ी बड़ा नंबर हो Yes, जाता sir. है ना? Okay. Then after that आपका psych test start हुआ होगा, ठीक है? And tell me something about your interview portion and psych test experience. Sir, in second day we were conducted our psych test. Sir, in the psych test, first is a TET portion. So मैंने सर इतनी प्रैक्टिस कर ली थी सर टेट की. सर अराउंड 6 to 8 स्टोरीज वर मतलब देखी हुई आ गई थी सर मेरी. सो आई क्रिएटेड अ गुड स्टोरी, एंड जो बाकी बची हुई स्टोरीज थी सर, इन दैट ऑल्सो आई क्रिएटेड अ गुड स्टोरी, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस अ लॉट. सर आप प्रैक्टिस करा दिए थे स्कूल में सर. सीनियर्स हैड सेंड आवर PDFs, एंड वी यूज टू प्रैक्टिस. बैच हमारा भी सर प्रैक्टिस करता था. तो सर टेट वॉज माई बेस्ट पोर्शन. एंड सर आफ्टर दैट वेट वॉज सर आर डिफ़िकल्ट, बिकॉज बड़े वर्ड्स आ रहे थे सर, लाइक आई रिमेंबर अनटचेबिलिटी, एक्नॉलेजमेंट. सर दीज वर द लेंदी वर्ड्स. सो वेट वॉज, आई completed all my wets and created good response also in that. Sir, coming on to SRT, I attempted 45 of them, 60. And sir, in my batch, there was a student who attempted just 36, and he got recommended. And sir, SDT, we had already know about ourselves, and we have already written our SDT, so it just benefited me. And if I completed my SDT in before the time, तो जो टाइम बच जाता है सर, उसमें जो अगर आपको कुछ रह रहा है, लाइक अगर वेट में कोई वर्ड छूट गया है, टेट में कोई स्टोरी छूट गई, so we can complete that. So it's a point to be. There is a portion in SDT that is write down your strengths and weaknesses. So Yes, sir. what you have written over there? Sir, I written my strength, like sir, in GTO was my great strength, and sir, I written that I can take initiatives, and I am socially adaptable to other persons, because in my school, sir, we were taught these things, and we were used to familiar with them. And sir, in my weakness, I wrote I was not very comfortable with English, and sir, I used to increase my imagination power so that I can imagine more and write a good story in TET. Okay. जितने भी स्टूडेंट जो ये जिनके माइंड में ये डाउट चल रहा था कि इंग्लिश हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स, द एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइज. द स्टूडेंट हु इज़ नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश गॉट रिकमेंडेड, राइट? इफ ही कैन गॉट रिकमेंडेशन देन यू कैन ऑल्सो, है ना? तो इंग्लिश कम्युनिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, बट योर कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. इट मीन्स आप अगर हिंदी में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी आपकी एक इम्प्रेसिव होनी चाहिए, Yes, sir. राइट? सो ओके, नाउ अब बात करेंगे GTO पार्ट पे. तो GTO पार्ट में जो आपके टास्क रहे, Yes, sir. तो उनमें से कौन सा टास्क ऐसा रहा जो आपका सबसे ज़्यादा आपको लगा हो कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे?
Sir, PGT, sir, I remember that in my group, when we were given a PGT task, sir, most of the groups already completed the PGT, and if they were stuck in third or fourth obstacle. But sir, as our PGT was started, we were stuck in beginning of the second obstacle. Sir, GTO was observing us because we were stopped in the beginning of the second obstacle, and none of our teammates were getting any idea to how to cross it. So sir, GTO sir only suggested okay, you can take this way and move. Sir, we did that, but we again stuck in the beginning of the third obstacle. Then again GTO sir was seeing us that what are you doing. They also mentioned that what are you doing, you are stopping in the middle of the both the obstacles. Sir, after that he also suggested another idea that you can take that way, because I think sir our PGT was the most toughest in the whole Allahabad campus. So that's why sir we were stuck most, and I was imagining that we less were we recommended from our group, but sir 6 out of 10 were recommended from my group. Yeah, exactly. I don't know whether it is right or wrong, but Allahabad center is one of the toughest center, Yes sir. है ना. Yes sir. काफ़ी स्टूडेंट्स से और काफ़ी रिकमेंडेड स्टूडेंट से भी मैंने ये चीज़ मतलब ये जो एक्सपीरियंस लिया है. और मेरा भी जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा एसएसबी का, वो एसएसबी इलाहाबाद से ही रहा. Sir. एंड Sir, Allahabad were used to call the rejection center, but अब सर थोड़ा ठीक हो गया. बट अभी रिसेंटली जो स्टूडेंट्स रिकमेंड हुए हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रॉम द इलाहाबाद सेंटर, Yes sir. है ना, एसएसबी इलाहाबाद. तो कोई नहीं, आपको तो एक रिकमेंडेशन चाहिए. Yes sir. तो कहीं से भी हो, एसएसबी इलाहाबाद हो या एसएसबी भोपाल हो या कोई भी एसएसबी हो, डजेंट मैटर. आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं अगर, तो आप कहीं से भी रिकमेंड हो सकते हैं. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट इंटरव्यू पोर्शन, देन जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस कि इंटरव्यू आपका कितने घंटे चला और Yes. क्या उसमें क्वेश्चंस रहे ऐसे. Sir, my interview was around 20 to 25 minutes और पूरा PIQ बेस्ड था. मतलब जो भी मैंने PIQ में भरा था पूरा उनने मतलब उसी से क्वेश्चंस पूछे. लाइक सर they started from where I came, and sir he asked the question that how many stops were there while you were coming from your destination to Allahabad. Yeah, it's a common Yes sir. question. But sir I could not remember it, so I said sir I don't remember. सर बाद में उन्होंने इंटरव्यू चालू किया. उससे दे टॉक्ड अबाउट माई सेल्फ, माई फैमिली बैकग्राउंड, एंड दे केम इनटू PIQ सेक्शन दैट व्हाट आर द स्पोर्ट्स आई प्ले, व्हाट आर द अचीवमेंट्स आई हैड, एंड हाउ दिस inculcated in my personality, and what are my hobbies. All the sir that I filled in my PYQ, all the details. He encountered all the questions from them. एग्जैक्टली. तो ओवरऑल आपका इंटरव्यू था वो कितने टाइम पीरियड तक रहा? Sir 25 minutes. 25 मिनट्स. हाँ, 25 मिनट्स भी काफ़ी कम ही है, Yes sir. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे जिनका 1-1 घंटे 1.5 घंटे Yes, sir, in रहा. my batch there were students around 1 and 10 minutes, 1 hour 10 minutes. 1 hour 10 minutes. Okay. Okay, at last, what's your experience in conference? कौन था वहाँ पे अवेलेबल जब आप कॉन्फ्रेंस के लिए गए? Sir, I had a great experience in conference. I remember that in my batch सबसे पूछा जा रहा था कि how do you rate yourself and what were the best tasks in all the SSB experience. But sir जैसे ही मैं अंदर एंटर किया, सर मुझसे पूछते हैं what is the difference between weather and climate. सर मैं बताता हूँ. फिर मुझे लगा सर पूछेंगे what is the rate your performance. पर सर फिर पूछते हैं tell me the temperature difference between your city and Allahabad. Sir, I encountered that. After that, he says you can go now. ओके, तो इट मीन्स कॉन्फ्रेंस में आपका ऑलमोस्ट Yes, sir. 3 to 5 मिनट्स रहा. Yes, around 1.5 minutes. 1.5 minutes. Okay. तो फाइनली यू गॉट द रिकमेंडेशन फ्रॉम एसएसबी इलाहाबाद. Yes, sir. कांग्रेस सुबनंदन. और मेडिकल के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? Sir, I was medically fit in SMB, and I had done my pre-medicals, and for God's sake, I was medically fit in first time only SMB.
एंड सर अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है मतलब तो जो डॉक्टर्स होते हैं SMB हैं वो सजेस्ट कर देते हैं कि यू कैन टेक दिस थिंग एंड यू कैन टेक दिस थिंग सो दैट यू कैन क्योर योर सेल्फ। बिकॉज वो जानते हैं कि द प्रोसीजर यू हैव इतने प्रोसीजर जो किया है वो वेरी टफ है और एक मेडिकल की प्रॉब्लम से अगर तुम बाहर हो जाओ तो कैसा लगेगा, इसलिए वो सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो सजेस्ट कर देते हैं कि यू कैन टेक दिस थिंग। Okay, so last but not least, Sir. I just want to ask you your personal experience, your life experience. Is there any life-changing moment in your life which you want to share with the students, and from where you got the motivation? As you already told that you got the motivation from your parents, right? Yes sir. And anyone else from where you got the inspiration which you want to share with the students? Sir, I am from Sainik School, sir. So I used to see our principal, sir, headmaster, sir, and our seniors, those who have cleared the NDA exam, sir. These were my motivation, and sir, the motivation to join defense forces, to lead a adventurous life, the life full of other things, and a completely different life from every job. This was my motivation, and sir. लाइफ चेंजिंग मूवमेंट सर वही था जैसे ही मैं 12th में एंटर किया। 11th सर अच्छी कट रही थी, मतलब इजी थी। 12th में एंटर करते ही सर वी हैड आवर NDA एग्जामिनेशन। सर हम उसके लिए बिल्कुल अपने अंदर से मतलब लग गए थे, जी जान लगा दी थी। NDA में हमारे पूरे बैच ने मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाया हुआ था। एंड सर माय रूममेट विकास चौधरी सर, हम साथ में सर मतलब ही यूज्ड टू सेंड मी टेट, मतलब हमने ग्रुप बना लिया था और हमारे साथ में भी बैच का पूरा ग्रुप था। हम लोग टेट भेजते थे, आपस में सॉल्व करते थे। एंड वी यूज्ड टू कंडक्ट मीटिंग सर, मीटिंग्स कंडक्ट करते थे, बताते थे किसका क्या एक्सपीरियंस, क्या वो गलती हो सकती है, क्या क्या हम देख रहे हैं। सर वो चीज़ पर्सनैलिटी में अगर वो चेंज कर देगा तो ज़्यादा बेहतर रहता। राइट राइट, इट मीन्स आप अपने साथ के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, इट मीन्स अपने फ्रेंड्स, अपने बैचमेट से जितना सीख सकते हैं, ठीक है। यस सर। अपार्ट फ्रॉम दी टीचर्स के अलावा आप आपस में बैठ के ग्रुप डिस्कशन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में करते हैं तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और हॉस्टल के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, घर से आप दूर रहते हैं लेकिन सर कुछ आपके पॉजिटिव उसके जब आप देखते हैं दूसरा कोई मेहनत कर रहा है तो सर अंदर से फीलिंग आती है कि वी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। और सेम आप साथ वाले जो स्टूडेंट रहेंगे, आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। यस सर। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट होता है। अगर कोई स्टूडेंट बहुत पढ़ने में अच्छा है और अगर आप उसके साथ रह रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, यस सर, तो आपका भी ग्रोथ इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी होगी उसमें। यस सर, है ना। और ये बेनिफिट मिलता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी आपस में अच्छे से पढ़ाई करें और ग्रुप डिस्कशन करें, तो एक पॉजिटिव ग्रुप स्टडी करें। ठीक है, तो ग्रुप स्टडी से भी काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। आपको अगर कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आ रही हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आप बाकी सबके साथ भी शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक टिप्स से किसी बच्चे का अच्छा हो जाए, है ना। यस सर। तो शुभनंदन हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यस सर। और काफ़ी अच्छा लगा आपका। और जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, जो देखेंगे तो उनको भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा। और मिलते हैं एनडीए में। जब भी नेक्स्ट टाइम मैं एनडीए आऊँगा तो आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा सभी से, ना। और फिर एंजॉय करते हैं बाकी, और अच्छे से ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर लाइफ। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छे से ऑफिसर बनिए। और ऑफिसर के बाद भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको अचीव करनी है। यस सर, है ना सर। जो सीखने का फेज है सर वो कंटिन्यू रहता है। हाँ, वो कंटिन्यू रहेगा लाइफ टाइम। यस सर। अगर लाइफ टाइम आप सीखते रहेंगे और अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। यस सर। कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर अगर आप अपडेट नहीं करेंगे यस सर, तो आप खत्म हो जाएंगे। लाइक ऑर्कुट आपने सुना है? नहीं सुना है? नो सर। ऑर्कुट फेसबुक से पहले एक सॉफ्टवेयर आता था जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, ऑर्कुट। और फेसबुक से पहले ऑर्कुट काफ़ी पॉपुलर था, बट उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। और वो आज की डेट में उसको कोई नहीं जानता है। सर, अपडेट इज रिक्वायर्ड इन लाइफ, है ना। तो इसी तरीके से अपनी लाइफ भी अपडेटेड रखिए, अदरवाइज
इस दुनिया में आप कहीं खो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सर जब हम लोग आपसे कोचिंग ले रहे सर, हम लोग को उतना अपडेशन नहीं था करंट अफेयर से। आपने सजेस्ट किया था कि एसएसबी में ये सब करंट अफेयर से अपडेट रहोगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिट रहेगा तुम्हें। करंट अफेयर्स आपका हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, लाइक रिटन एग्जामिनेशन एंड एसएसबी इंटरव्यू। बिकॉज लेक्चरेट की अगर मैं बात करूँ तो लेक्चरेट में जो पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, वो करंट अफेयर से ही उठाए जाते हैं। यस सर, रिसेंट टॉपिक्स। हाँ, रिसेंट टॉपिक्स होते हैं, और अगर आप उनसे अपडेटेड नहीं होंगे, इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दोज टॉपिक्स, तो आप उन पे विद कॉन्फिडेंस आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। yes, sir. आप नहीं बोल सकते हैं, तो वहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डगमगा जाएगा। yes, इट डजेंट मैटर वेदर यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, शेयरिंग योर थॉट इन हिंदी और इंग्लिश, बट आपके पास होना चाहिए। यस सर। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, यस सर, तो आप चाहे हिंदी आपको बहुत अच्छी आती हो या इंग्लिश आती हो, आप नहीं बोल पाएंगे। तो बेसिकली मैं बोलूँ तो नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस। यस सर। ठीक है, नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो करंट अफेयर से अपडेटेड रहें, जो डेली न्यूज़ है उससे अपडेटेड रहें, चाहे आप एनडीए जाएं या ना जाएं, या कहीं किसी भी जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो सर। वो एक डेली लाइफ का पार्ट होता है। सर इंटरव्यू में ये बेसिक क्वेश्चंस होती हैं कि व्हाट आर द रीसेंट न्यूज़, व्हाट आर द टॉप 5 हेडलाइंस। एग्जैक्टली, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर। राइट। तो चलिए, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बाकी मिलते हैं किसी और दिन, नेक्स्ट टाइम जब भी मुलाकात होगी तो शुभनंदन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूंगा मैं। तो हैड अ गुड टाइम, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन शुभनंदन, थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे।